So yesterday we have started just as a chiller, and in one point we have written under introduction. What that we have written? लास्ट क्लास में कुछ पॉइंट लिखे थे, एक पॉइंट आई थिंक 1 या 2 पॉइंट लिखे थे, दो पॉइंट लिखे थे जी। क्या था बताइए सर? द चिलर इज द हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द चिल्ड वाटर, हीट कंप्रेशन ड्यूरिंग वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, और सेकंड था हीट एब्जॉर्प्शन ड्यूरिंग वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल। दोनों एक्चुअली एक ही पॉइंट है। तो वी हैव रिटन देयर as the chiller rejects the heat extracted from the chill water plus the heat of compression। तो heat of compression जो आएगा, तो heat of compression कहाँ पे आता? At what VCR cycle, VCR cycle में heat of compression ज़्यादा, but heat of absorption कहाँ पे आएगा? अगर अपने vapor absorption cycle है तो वहाँ पे heat of absorption आएगा, isn't? तो the same thing you have written, the chiller is a machine and which rejects the heat extracted from the chill water plus the heat of compression during the cycle of vapor compression or heat of absorption during the cycle of vapor absorption। अब ये जो heat है ये किसको remove करेगा? It will remove toward what as a ambient air or either what as a another circuit of water। मतलब ये इस दो वर्ड से ये मालूम चलता है, ये तो chiller is what air cooled और water cooled, isn't? तो अब ये जो क्वेश्चन ये जो बता, मतलब इसमें तो ये दे रहा कि chill it will remove the heat from the chill water as well as what as a heat of compression। मतलब ये है इसका, यहाँ देखिए that after writing down that in chiller, so the section for the chillers or the internal circuit of the chiller we having there as a compressor first, and the compressor runs with help of what as a motor, then after compressor we'll having what? Condenser coil, then VCR cycle, expansion valve, then as a evaporator। Okay. So it is a condenser, it is a evaporator, and it is an expansion valve। So expansion valve will be here in the chiller generally as a capillary tube type, okay? Expansion valve, condenser, evaporator, compression, okay? So what is the state of refrigerant after coming out from the this evaporator? किस स्टेट में रहता है ये? बोलिए, what will be the state of it? It will be in the vapor refrigerant but at low pressure and low temperature. It will be entered to the compression. After compressing, it will become as a superheated vapor refrigerant but at high pressure and high temperature, okay? Condenser के ऊपर में fan रहता to cool down if it is a air cooled, isn't? And then it's a change its phase change करके क्या होता है यहाँ पे? refrigerant, liquid refrigerant, but it's still what as a at high pressure and high temperature। After expanding, it will be as a what? Liquid refrigerant but at low pressure and low temperature। So this is cycle of the chiller, internal cycle of the chiller, that is a VCR। Then chill water supply होता after getting, इसके अंदर क्या रहता? chill water fill क्या रहता? water मतलब
तो अगर इस कॉइल पे, एवापोरेटेड कॉइल पे अगर हवा फ्लो करे, एयर फ्लो करे, तो हवा ठंडी हो जाती, और अगर कॉइल को किसी टैंक में रख के वाटर को फिल कर दिए तो वाटर विल बिकम एज ए चिल्ड। तो यहाँ से चिल्ड वाटर प्रोड्यूस होता है, एंड दैट वाटर विल बी सप्लाई टू द व्हाट इक्विपमेंट्स विथ हेल्प ऑफ व्हाट पंप्स, and then water will, and this water supply is called as what? Chill water supply at the rate of generally 45 degree Fahrenheit, and the water will return back to the chiller, that is chill water return with help of primary pump called as a 55 degree Fahrenheit temperature. So this is a PP primary pump and it is a SP secondary pump, is it? Now तो अब यहाँ पे बताने का मकसद ये, यहाँ पे देखिए अभी अपन डेफिनेशन क्या लिखे, द चिल्लर रिजेक्ट्स द हीट फ्रॉम द चिल वाटर। तो मतलब ये देखिए यहाँ पे ये साइड में वाटर किसको जा रहा, इक्विपमेंट को जा रहा, AHU FCU कुछ भी, कोई सा भी लोड हो उसे जाके ये कनेक्ट हो जा रहा, ये उसे जाके कनेक्ट हो रहा किसी भी लोड को, लाइक AHU FCU एनी लोड, फिर रिटर्न हो जा रहा है यहाँ से, isn't? Now, तो लोड साइड जहाँ पे AHU चिल्लर्स वगैरह, सॉरी AHU FCU लगे हुए, तो एट दैट साइड per TR how much heat is getting released? 1 TR is equal to how much BTU per hour? बोलिए 1 TR is equal to how much BTU per hour? 12,000 BTU per hour। मतलब अगर अपन ऐसा बोल रहे हैं कि अगर मेरा 1 टन का मशीन है तो कितने हीट को रिमूव करेगा वो? 12,000 BTU पर आवर। तो अगर मेरा ये मशीन 1 टन का है तो 12,000 BTU पर आवर ये मशीन हीट को रिमूव करेगा पर आवर। तो इसका मतलब अपना जो वाटर यहाँ पे सर्कुलेट कर रहा, जो चिल वाटर इन कर रहा, चिल वाटर आउट हो रहा, तो ये जो रिटर्न जो वाटर आ रहा, इसके पास पर टीआर कितना हीट एब्जॉर्ब है बता सकते हैं? जो वाटर जो इक्विपमेंट्स जो रिटर्न आ रहा, इसके पास पर टीआर कितना हीट यहाँ पे एब्जॉर्ब है? सोचिए, दिमाग लगाइए। पर टीआर हाउ मच? सेम बाबा। अब ये हीट रिमूव कर रहा, मतलब स्पेस की हीट को रिमूव कर रहा है एएचयू, तो हीट कहाँ जा रहा? तो कोई ऑब्जॉर्व करने वाला होगा, तो दैट वाटर विल ऑब्जॉर्व द हीट। तो अगर ये 1 टीआर 12,000 BTU पर आवर हीट रिमूव कर रहा, तो इसका मतलब ये वाटर कितना हीट एब्जॉर्व कर रहा? पर टीआर 12,000 BTU पर आवर। इसका मतलब चिल्लर के जो एवापोरेटर में जो वाटर है जो रिटर्न आ रहा, ये पर टीआर कितना हीट लेके आ रहा है यहाँ पे? 12,000 BTU पर आवर। तो अब सपोज कीजिए हीट यहां से लेकर आया इन्हें, तो फिर वापस ठंडा हुआ, यहां से लेकर आया फिर ठंडा हुआ, तो इसका मतलब ये जो एवापोरेटर है पर टीआर कितना हीट यहाँ पे रिमूव हो रहा? देखिए बोलिए, नहीं बोलेंगे तो चिल्लर समझ में नहीं आता। चिल्लर अगर समझ में नहीं आया तो एचयूएसी पढ़ना बेकार है फिर, इसलिए बोलिए, गलती है सही कुछ तो बोलिए। अगर 1 पर टीआर 12,000 BTU पर आवर ये हीट लेकर आ रहा, तो चिल्लर में यहाँ पे जो वाटर है वो कितना पर टीआर हीट रिजेक्ट कर रहा है इस कूलिंग कॉइल को? सेम 12,000 BTU पर आवर। तो मतलब यहाँ पे जो रेफ्रिजरेंट है इसमें, इस ट्यूब में, चिलर के अंदर जो ट्यूब है, ये ट्यूब में जो रेफ्रिजरेंट है गैस प्राइमरी, ये अपने को जो हीट एब्जॉर्ब करेगा पर टीआर कितना एब्जॉर्ब करेंगे? सेम 12,000 BTU पर आवर। अब पर टीआर 12,000 BTU पर आवर के मुताबिक अब यहाँ पे रेफ्रिजरेंट इंटर करेंगे कंप्रेसर में। कंप्रेसर में जैसे इंटर कर रहा, कंप्रेसर इसको कंप्रेस करेगा। तो बिफोर कंप्रेशन हीट इज हाउ मच? पर टीआर 12,000 BTU पर आवर। बट जैसे कंप्रेस होगा तो कैसे अपन ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर राइज हो रहा कहीं ना कहीं से, तो बिकॉज ऑफ द कंप्रेशर, बिकॉज ऑफ द कंप्रेशन प्रोसेस, व्हाट्स हैपनिंग, पर टीआर 3,000 BTU per hour heat being added. समझे? This is called as a heat of compression.
तो हीट ऑफ वाटर जो एक टीआर में कितना आता है 12,000 BTU पर आवर, और कंप्रेशर बिकॉज ऑफ कंप्रेशन ये हीट राइज होता, तो पर टीआर कितना हीट ऐड कर रहा है कंप्रेशर बिकॉज ऑफ कंप्रेशन 3000 BTU पर आवर। तो अब मुझे ये बताइए जब ये कंडेंसर को पहुंचने वाला होगा यहाँ पे पर टीआर कितना हीट होगा? 15,000 BTU पर आवर। ये बात समझ में आ गया? तो इसका मतलब यहाँ पे जो कंडेंसर है, कंडेंसर वो पर टीआर कितने हीट को रिमूव कर रहा है? कंडेंसर पर टीआर कितने हीट को रिमूव कर रहा है? सेम 15,000 BTU पर आवर। ओके, तो ये इसकी साइकिल है। तो इसीलिए क्या बोल रहा, आपको चिलर्स के डेफिनेशन में क्या लिखे है? तो चिलर इज दैट मशीन विच रिजेक्ट्स द हीट ऑफ चिल वाटर। अब इस चिल वाटर की जो हीट है ये कहां पे जाकर रिजेक्ट हो रहा है? यहाँ पे हो रहा, कंडेंसर के पास ही। और प्लस हीट ऑफ कंप्रेशन ये भी कहां पे रिजेक्ट हो रहा है? यहाँ पे। तो दोनों मिलकर कितना है? BTU पर आवर 15,000 पर टीआर। तो दैट इज द डेफिनेशन। तो अब ये जो हीट रिमूव हो रहा ये किसको रिमूव होगा? ये कंडेंसर की जो हीट है किसको रिमूव होगा? कोई तो यहाँ पे एक्सेप्ट करने वाला होना चाहिए। तो दो है। पहला क्या है? इसकी कंडेंसर की हीट को कौन एब्जॉर्ब कर सकता? लो IQ पीपल, एम्बियंट एयर। कंडेंसर की हीट किसको रिमूव हो रहा है यहाँ पे? एम्बियंट की, एटमॉस्फेरिक एयर में है तो एम्बियंट एयर ये एब्जॉर्ब कर रहा, डेफिनेशन में भी लिखा हुआ। सेकेंड, अगर एम्बियंट एयर नहीं कर रहा तो सेकेंड कौन सा हो सकता? वाटर हो सकता, दैट इज अ कूलिंग टावर वाटर। ड्रॉ कर लीजिए जल्दी से।
सर यस सर आपने पिछले तो चिलर में पढ़ाया था वो एम्बिएंट एयर वाला, सर वो वाटर कूल्ड चिलर में बताया था। क्या बताया थे? सर जैसे अभी आपने बताया ना जो कंडेंसर में एम्बिएंट एयर वाला, हाँ, अगर ये हीट इसकी एयर को रिमूव हुई, एम्बिएंट एयर को, तो उस वो एयर कूल्ड चिलर होगा। अगर इसकी हीट वाटर के थ्रू ही रिजेक्ट हुई तो वाटर कूल्ड चिलर हो जाएगा। सर एक बार और थोड़ा सा इसको इसको हाँ, फिर आता है अपना एयर कूल्ड वाटर कूल्ड चिलर सेपरेट आता है, अभी आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन का डेफिनेशन था। पहले पहले भी आपने बताया है। हाँ, मैं बताया हूँ पहले, तो यहाँ पे वही बता रहा हूँ, ये जस्ट डेफिनेशन का। अभी अपन एयर टाइप ऑफ चिलर लिखेंगे, उसमें फिर से आता है ये। Is it over? Yes? Yes, sir. Okay, no, fine. Now, next, after that, write down. एक point लिखिए. Chill water is produced in the chiller. Chill water is produced in the chiller. Chill water is produced in chiller. Bracket में लिखिए. Shell and tube type heat exchanger. Chill water is produced in the chiller. In the chiller, bracket में लिखिए, shell and tube type heat exchanger. That is in evaporator. That is in evaporator. तो इसका मतलब evaporator क्या है आपका? Shell and tube type of heat exchanger. So what you have written, chill water is produced in chiller, in the bracket shell and tube type of heat exchanger, that is evaporator, and is circulated via chill water pump and circulated via chilled water pump to chilled water pumps to air handling unit, comma, fan coil unit, comma, fresh air handling unit, and etc. And is circulated via chill water pump to air handling units, comma, fan coil units, comma, fresh air handling unit, comma, etc. Full stop. ये काम है ना चिलर्स का, कि वाटर को प्रोड्यूस करते, चिल वाटर को प्रोड्यूस करते कहाँ पे? एवापोरेटर में. दैट इज व्हाट एज ए शेल, एंड ये शेल है टैंक, ट्यूब में रेफ्रिजरेंट है. द शेल एंड ट्यूब टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर which after producing that water is getting circulated via the pumps to the what? AHU, FCU, FAHU. Even nowadays we having the cassette AC of the chill water type. तो उस केस में वहां पे आएगा.
It's okay. So this is about what as a chiller introduction. Now we will see that here as a types of chiller. Give the heading, subheading, types of chiller. Types of chiller. Under that, first point write down. Based on condenser types. Based on condenser cooling type लिख सकते हैं. Based on condenser cooling type. अब कूलिंग बोल देंगे तो फिर यहाँ पे बोल देंगे यहीं पे कूलिंग हो रहा. सिंपल लिखिए बेस्ड ऑन कंडेंसर टाइप. दैट्स इट. Based on condenser types. In the A bit right, air cooled chiller. Air cooled chiller की जो रेंज रहती कूलिंग की that is 7.5 TR2. मशीन जो अवेलेबल है up to maximum 500 TR. तो air cooled chiller, how it is? Let's look here. Same. Compression. Condenser. Expansion valve. Evaporator. Connect them. So in the air cooled chiller, condenser will be cooled by what as a fan. Axial fan. So it is what as a air cooled. Then expansion valve. It is a evaporator. Evaporator is a shell and tube type. It is a compressor run with help of motor. It is evaporator. Okay, so in the shell there is a water filled here. और इसके ट्यूब में क्या फ्लो कर रहा है? रेफ्रिजरेंट. Here as a vapor refrigerant. Here also as a vapor refrigerant, but at high pressure and high temperature. Here as a liquid refrigerant. Here also as a liquid refrigerant. That's it. Okay. Now next step. यहाँ से वाटर प्रोड्यूस होने के बाद सप्लाई हो रहा विथ हेल्प ऑफ सेकेंडरी पंप टू द बिल्डिंग and the water is returning back with help of primary pump to the chiller called as a chill water return at 55 degree Fahrenheit. It is a chill water supply at the rate of 45 degree Fahrenheit. और इन दोनों के बीच में suction side of the primary pump, it is a primary pump, it is a secondary pump. Suction side of the primary pump and suction side of the secondary pump, दोनों के बीच में एक पाइप कनेक्ट होता. That pipe is called as a bypass line. ये किस लिए यूज करते हैं अपन देखेंगे आगे. बाईपास लाइन. बाईपास लाइन से पहले और रिटर्न साइड में, प्राइमरी साइड में अपन को एक इक्विपमेंट रहता जिसका नाम है एक्सपेंशन टैंक. इसकी भी सेपरेट क्लास है साइजिंग वगैरह का. एक्सपेंशन टैंक. ओके. तो ये एयर कूल्ड चिलर कैसा है? क्योंकि इसको फैन लगी हुई and this condenser coil is cooled by a fan, that is axial fan. It is called as what? Air cooled chiller. That's it. तो अगर आप इसको ऑब्जर्व करें पिक्चर में तो यहाँ पे डिफरेंस देखिए. इट इज अ एयर कूल्ड. यहाँ पे ये कंडेंसर कॉइल है. ये देखिए वर्टिकल यहाँ पे कंप्रेसर लगा हुआ. ये बैक साइड में यहाँ पे एवापोरेटेड होगा. ये जो सारे फिन्स देख रहे हैं इसके ऊपर कंडेंसर कॉइल है. ये फैन चल रहा है, ये उसको कूल करेगा. यहाँ पे देखिए ये दो शेल है. ये शेल है, इसके अंदर ट्यूब रहता है रेफ्रिजरेंट का. ओके.
तो ये एवापोरेटेड है और इसके बैक साइड यहाँ पे कंडेंसर है। तो कंडेंसर के लिए भी फैन नहीं है, बट यहाँ पे टैंक बना हुआ, यहाँ पे वाटर आएगा कूलिंग टावर से, कॉइल को कूल्ड करके फिर वापस चले जाएगा। यहाँ पे ये कंप्रेसर है, इज अ एयर कूल्ड, इट इज अ वाटर कूल्ड। तो कैन यू ड्रॉ दिस फर्स्ट?